Namaskar. My name is Raman, and I'm a professional astrologer since many years. And I just wanted to share the basics of astrology, how to read a chart, what are the things to read a chart, and how many of you are working astrologers or have read astrology? You can also chat. You can put your messages in the chat also if it is difficult to speak. Okay, Suresh ji, that's fine. Namaskar, Jayashree ji. Good evening, sir. Good evening to everybody. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं या ज्योतिष करते हैं, क्योंकि मैंने सबसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बेटर होगा अवॉइड करेंगे क्योंकि उनके मतलब का नहीं है। मीनाक्षी जी, यू आर न्यू। Jayashree ji, you are working as an astrologer, so this is basic. You already know what we are going to talk here. But fine, if you want to stay, you can stay. That will be great. So shall we wait? Let us wait for a minute or two more. Maybe somebody will. मीटिंग गुड़ाक इयरफोन सुबुनी तो कटि जाउची। Okay, so it is a request that please don't create background noises. Thank you, Manisha ji. So it is 8:01, so let us start. So I just wanted to express my gratitude, and हम हिंदी में ही बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अरविंद जी। हम यहाँ बात करने बैठे हैं ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष क्या होता है और ज्योतिष के बारे में क्या क्या, ज्योतिष की क्या क्या सीमाएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम उससे कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए बेसिकली। आजकल की जो एज है, आजकल का जो टाइम है, उसमें जो नहीं करना चाहिए उसको ज़्यादा किया जा रहा है और बहुत से लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, आई विल बी कंटिन्यूइंग इन बोथ बिकॉज यू हैव टू bear with me. So this webinar is only for the reason that many people are now misguiding people in the name of astrology, which does not exist. And I am here just to give a basic idea of what astrology is, how it should be done, and what should not be done above all. Because what is to be done is being done by many people, but what is not to be done is done by most of the people. So yes, can anybody tell me what astrology is? Can anybody speak up and share his views or her views about what astrology is? ज्योतिष क्या होता है बेसिकली? इसके बारे में आपके विचार आप कोई देना चाहे, आई विल बी वेरी मच हेल्पफुल, ग्रेटफुल, एंड इट विल बी. As per my knowledge, it will tell the past exactly what can be happened by the senior people, but what can be done, it is a bit difficult to say. And we can understand and we can able to take a small precautions, or some alert will be there in our brain if you know a little bit on the future. Okay, fine, good. Anybody else? Anybody else who wants to speak about what he or she knows about astrology, what astrology is, based upon the perception you might have seen the videos, reels, and everything, Instagram, YouTube, Facebook, television. Sir, astrology means the future prediction which can we predict. Okay, fine. It's a guide for life, Meenakshi ji. Yes, kind of. Okay. सो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो ज्ञान होता है या विज्ञान होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी इज ए प्योर साइंस. इट इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स. देयर आर नो सो कॉल्ड मिरिकल्स. ज्योतिष में ऐसे कोई मिरिकल्स नहीं होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं. रोज लोग आके बोल रहे हैं
कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, ऐसा और फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी इज हार्डकोर बेस्ड ऑन सिंपल मैथमेटिक्स। ऐसा उसके लिए आपको आईआईटी करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्लास भी अगर आप पास किए हुए हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स बिहाइंड मेकिंग ए हॉरोस्कोप एंड इंटरप्रिटेशन। तो ज्योतिष के लिए आपको, अगर आपने चौथा भी क्लास पढ़ी हुई है तो आप उसको समझ सकते हैं अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से कि उसमें हम कुंडली कैसे देखते हैं और भविष्य की हम क्या क्या बातें बता सकते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ज्योतिष जो है वो पूर्व जन्म की बातें भी बताता है, वो ज्योतिष जो है अगले जन्म की बातें भी बताता है। एस्ट्रोलॉजी इज ए कॉस्मिक मैप ऑफ 12 zodiac 9 planet and planetary aspects. यस। हमारा जब जन्म होता है उस समय में कौन से ग्रह की क्या स्थिति थी, कौन सा ग्रह कैसे गोचर कर रहा था, कौन सा ग्रह किस राशि में था, हमारी क्या लग्न थी, वो सब हम एक कुंडली में देखते हैं। और जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें बहुत सारी कुंडलियां देखने को होती हैं। नवांश होता है, दशांश होता है, षष्टियांश होता है, सप्तमांश होता है, पंचमांश होता है। सो देर आर मेनी हॉरोस्कोप्स टू सी इन ए ट्रेडिशनल हॉरोस्कोप। कृष्णामूर्ति पद्धति जो होती है वो एक बहुत ही फाइन ट्यून वर्जन है, और जिसको कि हम सबसे एंड में करेंगे। और गुरुजी कृष्णामूर्ति जी ने, के एस कृष्णामूर्ति जी ने, जो कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, ब्राह्मण थे चेन्नई में, एंड ही वाज ए साउथ इंडियंस बेसिकली आर बोर्न एस्ट्रोलॉजर्स। ब्राह्मण होना अपने आप में, एस्ट्रोलॉजी चलती है साउथ में आज भी। तो he used to do a lot of predictions which used to not go very much true. So he started thinking, pondering, and उनके ऊपर उच्चिष्ट गणपति जी के वो भक्त थे, उनकी ऊपर कृपा हुई। ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल ईश्वर की कृपा के बिना बड़ी सिद्धि, बड़ी चीज़ें व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर अपने प्रणाली इजाद करी जिसका कि नाम पड़ा कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी पद्धति। और कृष्णमूर्ति पद्धति उन्होंने कभी नहीं कहा था कि ऐसा नाम रखो, लेकिन जो उनके शिष्य थे उन्होंने उसका नाम केपी सिस्टम या केपी एस्ट्रोलॉजी रख दिया। लेकिन हम उस पर बहुत बाद में जाएंगे हमारे आखिरी दिन। अभी हम कुंडली कैसे देखनी है, और कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम पे ही बेस्ड है। कुछ चीज़ें उसमें अलग होती हैं, जैसे कि अयनांश अलग होता है, हाउस डिवीजन अलग होता है। और इन दोनों के फर्क अलग होने से बहुत सारा फर्क कुंडली में आ जाता है। दशा महादशा हाउसेस के डिवीजन से पूरी कुंडली बदल जाती है। अब हम शुरू करते हैं कुंडली में। तो अगर आप आप कभी कुंडली देखी है आपने, हॉरोस्कोप होता कैसा है? आप में से सबने कभी ना कभी तो कोई ना कोई हॉरोस्कोप देखा होगा। ओके। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे जो चौकोर सा वो बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड हॉरोस्कोप। इसको कुंडली बोलते हैं। इस कुंडली के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। ये कुंडली के घर कहलाते हैं, इनको कहते हैं हाउस या भाव। जोडियाक में हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें हम ऐसा माना, उसको हमने 12 हिस्सों में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने डिवाइड करा। उसके 12 इक्वल हिस्से हुए जो कि राशियां कहलाई। एक जो राशि होती है, क्योंकि 360 डिग्री का एक सर्कल होता है तो ऑब्वियसली 30 डिग्री की एक राशि होती है। जो 9 ग्रह ज्योतिष में यूज किए जाते हैं वो है सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु। इसके अलावा 27 नक्षत्रों का भी ज्योतिष में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज्योतिष में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ऐसा लोगों को लगता है कि ग्रह बहुत जरूरी होता है, लेकिन ग्रह सिर्फ एक डिलीवरी करने वाला एजेंट होता है। जैसे आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, जो अगर घर में खाना नहीं बना है तो स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर कर देते हैं और वो आपको खाना दे जाता है। ऐसे ही जो आपके कार्य कर्म का फल है वो आपको ग्रह देते हैं। आपकी दशा के अनुसार आपके जो भाव चल रहे हैं, जो जो चलने वाली दशाएं कौन से भाव को इंगित करती है, प्लैनेट आके उसका फल आपको देते हैं। एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला जो प्रेमाइस है, जो बेस है, वो पुनर्जन्म ही है। आपने जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे हैं या बुरे कर्म करे हैं, दोनों का फल आपको इस जन्म में भोगना है। ये दिस इज द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और यही वो फर्क होता है जो कि
हमको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बाकी जगह आदमी को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ही माना जाता है पुनर्जन्म, रीबर्थ। और जो भी बैकग्राउंड नॉइज है उसको प्लीज ऑफ रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छा होगा कि आप बनियान पहन के ना बैठे, शर्ट पहन के बैठे, पलंग पे ना लेटे रहें, क्योंकि शोभा नहीं देता। इट डजेंट लुक्स गुड। और तो हम शुरुआत करने के पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आपका जब जन्म हुआ था उस समय आपके जन्म स्थान से लेके आप जहां आपका जन्म था वहां के स्थान से सापेक्ष लेके कौन सा ग्रह किस राशि में था, वो आपकी कुंडली कहलाती है। वो आपका बर्थ हॉरोस्कोप होता है। आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, राशि। राशि के रत्न, राशिफल, आज का राशिफल, साल का राशिफल, वर्षफल, किस किस ने सुना है? राशिफल सबने सुना है। हाँ, उसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि आपका राशिफल, आपका दिन कैसा रहेगा, और आपकी राशि ये है, आपकी राशि वो है, तो राशि के पत्थर पहनिए, राशि के पत्थर पहनने से आपका भाग्य बदल बढ़िया जाएगा। बात है। कब? तो राशि का पत्थर पहनने से आप एकदम मुकेश अंबानी बन जाएंगे या बिल गेट्स बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कि वो एक फ्रॉड है। राशि का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपके जन्म के समय चंद्रमा मून हाँ कहाँ ट्रांजिट कर हाँ। रहा था, वो आपकी राशि होती है। और जो भी बैकग्राउंड नॉइज है प्लीज म्यूट कर दीजिए, नहीं तो मुझे सभी को म्यूट करना पड़ेगा, एक के चक्कर में सभी लोग की आवाज़ बंद होगी। थैंक यू वेरी मच। तो जन्म राशि का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपके जन्म के समय चंद्रमा कहाँ था और बाकी ग्रह कहाँ थे, वो भी हम कुंडली में देखते हैं। तो आइए हम एक छोटी हॉरोस्कोप देखते हैं। इसमें हमको राशि देख लेते हैं पहले। अभी अगर किसी का जन्म हुआ है इस समय, तो आप देखेंगे यहाँ पे MO लिखा है मतलब चंद्रमा, 3 नंबर यहाँ लिखा है मतलब मिथुन राशि, और ये कुंडली का 11वां घर होता है। तो इस व्यक्ति की जो जन्म राशि होगी वो मिथुन कहलाएगी, जमिनी कहलाएगी बस। अब अगर वो मिथुन राशि का पत्थर पहन ले या वो मिथुन राशि के जाप कर ले, मिथुन राशि के ग्रह के जाप कर ले, कुछ कर ले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो उसकी डेस्टिनी है वो उसको भोगनी ही पड़ेगी। कुंडली जो होती है वो, उसमें हम 12 घर, 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, इनका कॉम्बिनेशन करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और उसके आधार पे हम ये गणना करते हैं कि व्यक्ति के आने वाले जीवन में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें जीवन में उसके प्रॉमिस्ड है। सबसे पहली बात कि क्या क्या चीज़ें उसके जीवन में होने की संभावना है, और अगर संभावना है तो वो कब होगी। अगर संभावना ही नहीं है तो वो नहीं होगी, फिर व्यक्ति उसके पीछे भागता है। आज की दुनिया में हर आदमी उस चीज के पीछे भाग रहा है जो उसके भाग्य में है ही नहीं। और इसीलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है कि हर आदमी को बड़ा घर चाहिए, हर आदमी को डिफेंडर चाहिए, रेंज रोवर चाहिए, और बड़ा आलीशान सा 3 करोड़ का फ्लैट चाहिए, बट वो हर एक की किस्मत में होता नहीं है। तो ज्योतिषी लोग जो टीवी पे आते हैं वो आपको ये कह के बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप इस ग्रह का उपाय कर लीजिए, इससे आपके पास पैसे की वर्षा हो जाएगी। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसपे कि धन वर्षा यंत्र बिकता है। तो धन वर्षा यंत्र से धन की वर्षा होती है, जो बेच रहा है उसको होती है, खरीदने वाले के पास कोई वर्षा नहीं होती है, उसके पास सूखा ही रहता है। सो धन वर्षा बेसिकली मीन्स धन वर्षा, जो बेच रहा है उसके पास धन वर्षा होती है। और इन ये सब जो है ये सब फ्रॉड है, ये सब झूठ है। असल ज्योतिष जो है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, और बहुत ही मैथमेटिकल होता है, जिससे कि हम जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आप में से सब लोग को सारे दिन ज्वाइन रहना पड़ेगा। और मैंने रैंडमली एक नंबर ले लिया है, आपको अपने नंबर में देखना है इस पूरे नंबर में क्या कहीं पर जीरो आता है, अगर नहीं तो नंबर को। प्लीज़ अपने साउंड को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मुझे सभी को म्यूट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो भी चीज़ आपने आज तक सुनते आए हैं, और बहुत लोगों ने सुनी होगी, सभी ने सुनी होगी, कि वो 7 हॉर्सेस वाली फोटो लगा लीजिए अपने घर में तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं होता है, और आपका जो जीवन है, जो आपके भाग्य में लिखा है, वही का वही चलता रहता है, वैसा का वैसा ही चलता है। आइए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो प्लैनेट्स हैं उसको हम एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं। सबसे पहले जो ग्रह जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सभी ग्रह बराबर इस्तेमाल किया जाता है, तो सूर्य जो है वो एक वन ऑफ द प्लैनेट्स जो कि एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, इन सब का इस्तेमाल ज्योतिष में होता है, ये पता लगाने के लिए हर ग्रह को आपके कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। चाहे वो ट्रेडिशनल सिस्टम हो, चाहे केपी सिस्टम हो, सूर्य को राजा माना गया है, लाइफ गिविंग फोर्स होता है। ये आप भी जानते हैं कि अगर सूर्य नहीं रहेगा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। सारा जीवन जो है वो सूर्य पे आधारित है। बरसातों में जब सूर्य नहीं रहता है, आप लोग खाना खाते हैं तो बहुत लोगों को एसिडिटी होती है, क्योंकि जो आपकी डाइजेस्टिव पावर है वही खत्म हो जाती है। इसीलिए बरसातों में बहुत हल्का खाना खाने की सलाह दी जाती है, बिकॉज सनरेज का जो इंटेंसिटी है वो उतनी नहीं होती है। सन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत मुख्य ग्रह बनता है, जिसका डोमिनेंट प्लैनेट होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में वो व्यक्ति बड़ा राजसी होता है, क्योंकि सूर्य को राजा माना गया है, सूर्य को सोल माना गया है, आत्मा माना गया है, क्योंकि उसके बिना कुछ चलता नहीं है। तो हमारे शरीर में हार्ट के बिना कुछ नहीं चलता, हमारे शरीर में हार्ट पे जो नियंत्रण है वो सूर्य का माना गया है। हिंदू शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो जीवन है, जो हमारी जीवन ज्योति जिसको कहा है, वो हमारे हार्ट में एक अंगूठे के बराबर बिंदु में रहती है, एक तत्व में रहती है, जिसको कि हम आत्मा बोलते हैं, जीवन बोलते हैं, जीवन शक्ति बोलते हैं, प्राण शक्ति बोलते हैं, जो भी आप समझना चाहें। उसका कारक भी सूर्य है। क्योंकि सूर्य एक चमकने वाला ग्रह है, इसलिए हमारी शरीर में जो चीज़ों को देखने की क्षमता है वो हमारी आंखों में होती है। तो सूर्य हमारी आंखों का एक एक कारक प्लैनेट होता है। सिर्फ सूर्य नहीं होता, चंद्रमा और शुक्र भी होता है। जो भी शाइनिंग प्लैनेट्स हैं, दे आर सपोज टू बी द कारका और सिग्निफिकेटर ऑफ आइज। हमारे शरीर की ऊर्जा को भी सन कंट्रोल करता है। विटामिन डी जो है वो हमको सन की रेस से ही मिल जाता है। सर्दियों में जो लोग पहाड़ों में रहते हैं और बहुत ऊपर वाले क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर वो दिन भर घर में बैठे रहे। इसलिए आपने देखा होगा कि जनरली आप में से अगर कोई पहाड़ों में रहने वाला है तो दिन भर लोग बैठ के धूप सेकते रहते हैं, जस्ट बिकॉज टू गेट द, एक तो गर्मी मिलती है, सब लोगों की आपस में बातचीत हो जाती है, और शरीर को विटामिन डी मिलता रहता है। ये चीज़ बहुत लोग, बहुत कॉमन है, मतलब दिस इज अ कॉमन नॉलेज, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सूर्य के द्वारा हम क्या क्या क्वालिटीज देखते हैं? अथॉरिटी देखते हैं, लव देखते हैं, लीडरशिप देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, चीज़ों को अपनी सीमा में करना देखते हैं, फियरलेसनेस देखते हैं। सूर्य, जिनका कि सूर्य प्रधान लोग जो होते हैं वो बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, सत्य को ऊपर रखते हैं, सत्य के प्रेमी होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति होती है, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जुडिशियस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था कि सूर्य हार्ट का कारक है, तो अगर हम बीमारियों की बात करें तो सूर्य जो है हमारी जीवन में हार्ट प्रॉब्लम्स का मेन प्लैनेट होता है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्लैनेट होता है। जितने भी गर्मी लगने वाले बुखार होते हैं उनका प्लैनेट होता है। बैकबोन से संबंधित बीमारियों का प्लैनेट होता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का प्लैनेट होता है। लॉस ऑफ डब्ल्यूबीसी और आई प्रॉब्लम्स, ये सब हम सूर्य से देखते हैं। कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे कि सन आधारित जो व्यक्ति होता है वो आपको काम करता हुआ मिलेगा? गवर्नमेंट जॉब, डिफेंस वर्क रिलेटेड टू गवर्नमेंट, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कंट्रोल रूम्स। क्योंकि सूर्य जीवन दाता है, इसलिए फूड स्टॉक्स, वीट वेयर हाउसेज, राशन शॉप्स, होटल कैंटीन्स। इट इज़ ऑल्सो इम्यूनिटी गिवर, इसीलिए वैक्सीन्स, फार्मेसी, डॉक्टर, कंपाउंडर, और एनर्जी इन्वॉल्व है, इसीलिए जनरेटर, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर्स वर्क रिलेटेड टू दीज थिंग्स। क्योंकि सूर्य को माना गया है कि वो लाइफ गिविंग फोर्स है, इसीलिए वीट, राइस, ग्रेन्स, मेज, लेंटिल्स, स्पाइसेस, कैश्यू, आलमंड्स, ग्राउंडनट्स, कोकोनट्स, केमिकल्स, ऑक्सीजन, ऑल द एड फॉर मेडिकल प्रोफेशंस, गोल्ड, थिंग्स यूज फॉर गोल्ड प्रोडक्शन, इन सब में सूर्य को कारक माना गया है, सूर्य का आधिपत्य माना गया है। या सन डोमिनेटेड लोग इन सब एरियाज में आपको काम करते मिलेंगे।
सूर्य को सरकारी नौकरी के लिए भी मेन प्लैनेट, वन ऑफ द मेन प्लैनेट माना जाता है। पॉलिटिक्स के लिए भी एक वन ऑफ द मेन प्लैनेट माना जाता है, और लीडरशिप के लिए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना जाता है। लेकिन वो निर्भर करता है कि वो आपके हॉरोस्कोप में क्या सिग्निफिकेशंस लेके बैठा हुआ है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में सन स्ट्रांग नहीं है, वीक है, वो खराब हाउसेस से कनेक्टेड है, तो सन की दशा अंतर प्रत्यंतर में आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जो कि जनरली आप सोचते हैं कि आपको मिलेंगे। अगला प्लैनेट जो हम कनेक्ट करते हैं हमारे हॉरोस्कोप में, यूज करते हैं हमारे कुंडली में, उसको कहते हैं चंद्रमा, जिसको कि हम सभी लोग ऑफिस से वापस घर आते हुए देखते ही हैं, रात में चंद्रमा दिखता ही है। चंद्रमा मन सो जाता, यह एक शास्त्रीय कहावत भी है, लोकोक्ति भी है। तो चंद्रमा का जो अधिपत्य है वो हमारे मन पे माना गया है। जो पुरानी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स है उसमें ये भी ऐसा मानते हैं, और साइकोलॉजी में भी ऐसा माना जाता है कि मून हमारे माइंड के कंट्रोल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन आपने बहुत जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, या हॉरर फिल्म्स में आपने देखा होगा कि आपको एक कहीं से अगर भूत आना है तो अंधेरी रात दिखाएंगे, और प्रेत चुड़ैल वगैरह आनी है तो वो चांद जरूर दिखाते हैं, रात जरूर दिखाते हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है, ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन हमारी जो मन की शक्तियाँ हैं वो थोड़ी सी वीक हो जाती हैं। और क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है, एक्चुअल में तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो इसीलिए चंद्रमा को डायरेक्टली मन से जोड़ा गया है। समुद्र के जो ज्वार भाटे होते हैं उसमें भी आप पाएंगे कि वैक्सिंग और वेनिंग मून के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि मून सबसे क्लोजेस्ट है, वो अर्थ का ही एक उपग्रह है, तो सबसे पास है हमारे, इसलिए वो हमको इतना बड़ा दिखता है। इसीलिए उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है और हमारे मन पे होता है। जल तत्व का ग्रह है वो। हमारे चेस्ट, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स, डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेशन, आईज, यूरिन, इन सब पे कंट्रोल रखता है। अगर चंद्रमा खराब होता है या चंद्रमा के कारण कोई बीमारी आती है तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आती है। खास तौर पे साइकोलॉजिकल बीमारी जितनी भी होती है उसमें चंद्रमा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता ही है। मदरली लव हो गया, फीडिंग हो गया, माइंड हो गया, वाटर हो गया, मिल्क, जूसेस, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज, फिशरीज, सभी पर चंद्रमा का आधिपत्य माना जाता है। अगर हम चंद्रमा की क्वालिटीज की बात करें तो इट डिनोट्स सेरेनिटी, पीस ऑफ माइंड, कोल्डनेस, स्टीम, चेंज इन थॉट्स, ट्रेवल्स, फास्ट रिजल्ट्स, हाउस, लैंड, लव फॉर द कंट्री। क्योंकि चंद्रमा एक राजसी प्लैनेट है, जस्ट लाइक सन। सूर्य को राजा माना गया है और चंद्रमा को रानी, दैट इज वाई लव फॉर कंट्री। कौन कौन से डिजीज हम देखेंगे चंद्रमा से? हिस्टीरिया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, थ्रोट प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स। अगर हम एरिया ऑफ वर्क की बात करें तो किस किस जगह चंद्रमा का आधिपत्य होगा? इरिगेशन में, क्योंकि जलीय तत्व है। फिशिंग में, नेवी, सीवेज, केरोसिन, पेट्रोल, फ्लावर्स, नर्सरीज। और नर्सिंग का जो प्रोफेशन है इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मून। कौन कौन से उत्पादों में या प्रोड्यूसेस में वी विल कंसीडर मून? जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं, फास्ट ग्रोइंग वेजिटेबल्स हैं, शुगर केन, शुगर, मेज, निकल, सिल्वर, पर्ल, फिशरीज, सिल्वर प्लेटेड प्रोडक्ट्स, इन सब पे चंद्रमा का आधिपत्य माना गया है। आई रियली रिक्वेस्ट, अगर आप लोग सही में इसको सीखना चाहते हैं तो टेक ए कॉपी एंड पेन प्लीज, एंड प्लीज राइट। इट विल हेल्प यू ओनली। कम से कम ये जो 5-7 दिन हम एक साथ रहने वाले हैं, आप में से पता नहीं कल से कितने लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, बट आफ्टर यू विल फिनिश दिस बेसिक्स, आपको कम से कम इतना पता जरूर हो जाएगा कि अगर सामने से कोई व्यक्ति को आप सुन रहे हैं तो वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। दिस यू आर 100% गोइंग टू अंडरस्टैंड। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि यू कीप राइटिंग ऑल द थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव टोल्ड दैट यू आर नोवाइसेस और आपको एस्ट्रोलॉजी की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और जो एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद होने के लिए। इसके बाद अगला प्लैनेट आता है मार्स। मार्स इज टेकन एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द किंगडम ऑफ द सन। सूर्य का जो राजमंडल है उसमें मंगल को सेनापति माना गया है। तो मंगल के पास सेनापति का नेचर क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। वो आपने बहुत ज्यादा लोगों के मुंह से सुना होगा, ये तो मंगली है, मंगल इसका बड़ा भारी है, जब देखो तब लड़ता रहता है, बहुत बुरा बोलता है, जरा सी बात में हाथ चला देता है। लाइक दिस पर्सन स्टार्ट्स क्वारलिंग जस्ट ऑन ए मिनिस्क्यूल इनिशिएशन, बिकॉज ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्स। तो मंगल का जो पास जो
अधिपत्य होता है, क्योंकि वो सेनापति है तो उसके पास फाइटिंग स्पिरिट होती है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं होता है कि सिर्फ फाइटिंग, ऐसा नहीं है कि मास डोमिनेटेड लोग सिर्फ लड़ते ही रहते हैं। मंगल को लाल कलर का माना जाता है क्योंकि वो दिखता भी लाल है। उसका जो विजुअल आता है, अगर आप नासा की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा वो रेड मून, रेड मार्स सॉरी। क्योंकि वो लाल है इसलिए उसके साथ भी अग्नि को जोड़ा जाता है, सूर्य के साथ भी अग्नि को जोड़ा जाता है। जहाँ पे सूर्य की जो अग्नि होती है, जो फायर होती है, वो लाइफ के लिए एसेंशियल होती है, लेकिन जो मंगल की फायर होती है वो डेवस्टेटिंग होती है, वो विनाश करने वाली होती है। दोनों में फर्क यह है दोनों ही अग्नि है, दोनों ही तेज तप्त ग्रह। पावर, मैनलीनेस, अथॉरिटी, सेक्स डिजायर, एनिमलिस्टिक बिहेवियर्स एंड नॉइज, ये सब चीजें मंगल के अधीन आती है। हेड, फेस, यूरिनरी ट्रैक, वूम्ब, एनस, आउटर पार्ट ऑफ आवर पीनस, प्रोस्टेट एक्सेट्रा, इन सबको मार्स के अंडर रखा गया है। What are the qualities of Mars? Power, authority, fighting nature, courage, patience, planning, greediness, leadership, causing pain in sexual acts, causing fear in people, dominating. मार्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको डोमिनेट करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ एन आर्मी। आप उसको एक अगर व्यक्ति की तरह देखें मार्स को और उसके कार्यकर्ता को, तो आपको पता चलेगा कि मंगल डोमिनेटेड लोग, आप अपने स्कूल में देखिएगा, क्लास में आपको ध्यान होगा, या आप जो भी प्रोफेशन करते हैं वहाँ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो कि दूसरों को डोमिनेट करता होगा कि ये चीज़ तुमसे नहीं होगी, मैं करूँगा, तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। लीडर्स भी ऐसे बहुत एग्रेसिव लीडर्स होते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो आगे बढ़ के जीवन में कुछ करते हैं। मार्स का प्लेसमेंट हॉरोस्कोप में, अगर मार्स आपके लिए बेनिफिशियल बैठा है तो वो आपको कहीं से कहीं भी ले जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कुंडली में। ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं भी मतलब कुछ भी कर देगा, लेकिन जो आपकी लाइफ में कुंडली में प्रोमिसेस है उसका जो बेस्ट हो सकता है, अगर मार्स आपके लिए अच्छा बैठा है, उसकी दशा आएगी और वो दशा सपोर्टिव होगी तो वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा। आपके अंदर इतनी एनर्जी लेवल्स बूस्ट कर देगा कि आप फिर कुछ भी नेगेटिव सोचेंगे नहीं, जो करने का आपने प्लान करा है उसको खत्म करके ही छोड़ेंगे। ये मार्स की सबसे बड़ी विशेषता होती है। कौन सी डिजीज हम मंगल से देखते हैं? कट्स, ब्रूजेस, बर्न्स, फीवर्स, एक्ने, इचिंग, मैडनेस। हमने देखा कि हिस्टीरिया हमने मून में भी देखा है, लेकिन चंद्रमा का जो मैडनेस है वो दूसरे प्रकार की मैडनेस है। यहाँ जो मैडनेस है वो पागलपन वाली मैडनेस है, मतलब किसी चीज को पाने के लिए पागल हो जाना, या किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपने सेंसेस को छोड़ देना। अपने ब्रेन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस पे मार्स का कंट्रोल है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होते हैं, वन ऑफ द प्लैनेट इज मार्स। पाइल्स, फिस्टुला जैसी जो बीमारियां होती हैं मंगल के कारण होती हैं। रेड डिस्चार्ज इन फीमेल्स, हर्निया, पोलियो, पैरालिसिस, एसिडिटी, अल्सर्स, एक्स, कट्स, ब्रूज, बर्न्स और फीवर्स, एक्ने, इचिंग, ये मंगल के वो चीजें हैं जो आपको कभी भी कहीं भी दिख जाती हैं। जैसे जो बच्चे छोटे होते हैं उनके जो फुंसियाँ आती हैं, दैट इज मेनली ड्यू टू वीनस और मार्स। डिपेंड करता है कुंडली में दशा क्या चल रही है। और आगे चल के जो बच्चे गुस्सा करते हैं, स्कूल में मार पिटाई करते हैं, तो आप देखेंगे राहु मार्स का उस टाइम डोमिनेंस रहता है। कौन कौन से एरिया होते हैं जहाँ पे कि ऐसे लोग अधिकतर काम करते पाए जा सकते हैं? आर्मी, पुलिस, स्पाई, आर्म एंड अम्यूनेशन, शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले या यूज करने वाले, क्रिमिनल्स, गैंग लीडर्स, इनसे रिलेटेड चीजें मंगल के अंदर आती है। बुचरी, हेयर सलून, सर्जन, आयरन, कॉपर, बॉयलर, स्टीम इंजिन्स, एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट्स, ये वो एरिया होते हैं जहाँ पे कि मंगल से अधिष्ठित लोग अधिकतर आपको काम करते हुए मिलेंगे। कौन कौन से प्रोड्यूस पे मार्स का आधिपत्य माना जाता है? स्पाइसेस, गार्लिक, जिंजर, आयरन, स्टील, सॉर्ड्स, गन्स, बॉम्ब्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, गुड क्वालिटी वुड्स, वाइन, विस्की, बॉयलर्स, ऑक्साइड्स, बियर्स, टोबैको, इन सब पे भी मंगल का आधिपत्य माना जाता है। डिवाइन मनीषा जी, नहीं, रेमेडीज करके मेंटल संतोष मिल जाता है, मानसिक संतोष मिलता है कि हमने कुछ रेमेडी कर ली है। तो वो जो जोर का झटका है धीरे से लगता है, पर लगता उतना ही है और वैसे ही लगता है। तो रेमेडीज आर
बेसिकली अगर हम देखें मनीषा जी, तो हम सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे, इंस्टाग्राम पे यही सुनते रहते हैं कि इस ग्रह का उपाय ये है, मेरे बताए उपाय से ऐसा हो गया। मेरे जो ये उपाय बता रहा है वो खुद अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया उपाय, उसकी लाइफ वैसी की वैसी है, तो वो दूसरे को क्या ठीक करेगा। रील बनाना, पॉडकास्ट करना, फेसबुक पे आना, टीवी पे आना बहुत इजी है, और आके कुछ भी बोल देना उससे भी इजी है आप, क्योंकि उसको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, उसको पता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सो पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग वट एवर ही इज सेइंग। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। रेमेडीज काम करती हैं, बट देर आर सम कंडीशंस इन हॉरोस्कोप, अगर वो फुलफिल होती हैं देन वी कैन सजेस्ट रेमेडीज। सेम गोज विद जेमस्टोन्स, सेम गोज विद पूजा पाठ मंत्र तंत्र। लेकिन हमेशा रेमेडीज की जगह अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपने को सरेंडर करके रखता है, समर्पित रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ी रेमेडी कुछ नहीं होती है। ईश्वर की भक्ति करना सच्चे मन से, बिना किसी रिजल्ट की आशा के, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना सबसे अच्छी रेमेडी होती है जीवन की। अगला जो प्लैनेट है मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी इज द इटर्नल प्रिंस इन द किंगडम ऑफ द सन। इमेच्योरिटी, चाइल्डिशनेस, यूजलेस टॉक्स आर डिनोटेड बाय मर्क्यूरी। लेकिन वो प्रिंस है, उसके अंदर बचपना है, बचकानी बातें करता है, खूब सारी बातें करता है, रिपीटेटिव बातें करता है। बट उसके साथ ही मर्क्यूरी की जो एनालिटिकल एबिलिटी है बहुत शार्प होती है। स्टबर्न होते हैं, हैप्पी गो लकी होते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। दे आर वेरी गुड ओरेटर्स, दे आर वेरी वेरी क्लेवर, दे हैव ए वेरी गुड वोकेबुलरी, दे हैव वेरी गुड हियरिंग पावर, साउंड, वॉइस, डुअलिटी, व्हीकल्स, इन सब पे भी उनका आधिपत्य रहता है। लेकिन ऐसे लोगों का माइंड हमेशा फ्लिकरिंग रहेगा, एक जगह टिकता नहीं है। मर्क्यूरी हैज होल्ड ओवर ईयर्स, सेंसिटिविटी, बोन मैरो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स, शोल्डर्स, स्टमक एंड डाइजेशन। आप में से जितनों ने आयुर्वेद पढ़ा है, किसी ने, एनीबडी हु हैज रेड समथिंग अबाउट आयुर्वेदा? No, sir. आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं बेसिकली, वात, पित्त और कफ। तो इन तीनों के ही कारण डाइजेशन में दिक्कत आती है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे बॉडी में जो वात, पित्त और कफ की जो मात्रा है वो ऊपर नीचे होती है, तो रोगों का जन्म होता है। दिस इज द बेसिस ऑफ आयुर्वेद। तो जब आप किसी वैद्य के पास जाते हैं, वो आपकी नाड़ी देखते हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि आपको इस चीज तत्व की कमी है, इस तत्व की अधिकता है, एंड देन ही गिव्स यू मेडिसिन बेस्ड ऑन जो भी उसने नाड़ी देखी है। मर्क्यूरी वात प्लैनेट होता है, तो अगर वात की भी कमी होगी तो भी दिक्कत होती है। यस। कौन कौन से डिजीज हम देखते हैं मर्क्यूरी के लिए? टीबी, अस्थमा, डेफनेस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बोन मैरो डिजीजेस, फ्लटरिंग, डमनेस, म्यूटनेस। ये सब चीजें बुध के द्वारा देखी जाती हैं। अगर बुध की खराबी होती है तो ये सब रोग जन्म ले सकते हैं। क्वालिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या है? वेरी गुड एनालिटिकल एबिलिटी, इमेच्योरिटी, फ्लिकरिंग माइंड, स्टबर्न, मेनी थिंग्स एट ए टाइम, रीडिंग एंड राइटिंग। मर्क्यूरी बेस्ड लोग बहुत अच्छे लेखक होते हैं, उनकी पढ़ने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। दे आर इंटरेस्टेड इन मेनी थिंग्स। उनको ये भी अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा, ये भी कर लो, वो भी कर लो, बट अल्टीमेटली दे एंड अप डूइंग नथिंग। कौन कौन से एरियाज ऑफ वर्क होते हैं मर्क्यूरी के? ब्रोकर, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, एडवाइजर, प्रेस रिपोर्टर, ट्रांसलेटर, राइटर, एडिटर, पब्लिशर, प्रिंटर, एडवर्टाइजर, शॉर्ट ट्रेवल्स, मोबाइल फोन, जीपीएस, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, कंप्यूटर वर्क, एस्ट्रोलॉजी, टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ वट एवर इज डिजिटल, सब कुछ कंट्रोल बाय मर्क्यूरी है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग आगे एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, भले ही कहीं से भी पढ़े, मर्क्यूरी जब जब रेट्रोग्रेड होता है तो अपने इंटरनेट पे हमेशा ध्यान दीजिएगा और लैपटॉप पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कौन कौन से प्रोड्यूस पे मर्क्यूरी का रूल होता है? पेन, स्टेशनरी, बुक्स, पेंसिल, प्रिंटिंग मशीन्स, न्यूज़पेपर, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस, जीपीएस, हियरिंग एड्स, टॉयज, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सब मर्क्यूरी के अधीन होती हैं। अगला जो ग्रह हम यूज करते हैं ज्योतिष में, जिसको कि वो है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में भी आपने बड़ा सुना होगा। बृहस्पति के दोष आपने सुने होंगे, गुरु चंडाल दोष हो गया, मंगल दोष वो
गुरु केतु दोष हो गया, शनि गुरु दोष हो गया, पता नहीं कौन कौन से दोष बनाए गए हैं। तो ये सारे दोष भी जो होते हैं दे आर नॉट, ऐसा कोई दोष होता नहीं है बेसिकली। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली में हमें दोष ही नहीं देखने होते हैं, और दोष कभी देखने चाहिए भी नहीं, क्योंकि कोई दोष होता ही नहीं है। जितने भी दोष आप सुनते हैं, जितने भी दोषों के लिए आपसे पूजा कराने के पैसे लिए जाते हैं, दे आर ऑल नॉनसेंस। कुछ नहीं होता ऐसा। तो गुरु जो है, जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है। जुपिटर हैज 32 मून आई थिंक। क्योंकि वो बड़ा होता है इसलिए उसको एक्सपेंशन का माना जाता है। जुपिटर इज द हेड प्रीस्ट एंड एडवाइजर टू द किंग। उसको देवताओं का, राजा का एडवाइजर माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जुडिशियस होते हैं, ऐसे व्यक्ति डिवोटेड होते हैं, रिलीजियस होते हैं, वेद पढ़ने का शौक होता है। अब ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, मुस्लिम होंगे तो कुरान पढ़ने का, क्रिश्चियन होंगे तो बाइबल पढ़ने का, जो जिस धर्म का है। ऐसा कुछ नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हिंदू के लिए है, वो हर एक के लिए, हर जीवित एंटिटी के लिए एस्ट्रोलॉजी है, व्यक्ति के लिए। फार ऑफ ट्रेवल्स थ्रू सी और एयर का भी कारक प्लैनेट गुरु है, एक्सपेंशन का प्लैनेट गुरु होता है। जी, हमारे बॉडी में या कहीं पे भी कोई भी अगर छोटा सा मस्सा हो जाता है, तो उसको कैंसर बनाने में जुपिटर का हाथ होता है। जुपिटर इज वन ऑफ द मेन प्लैनेट कॉजिंग कैंसर। गुरु के बारे में बड़ी अच्छी बातें आप सुनते हैं कि गुरु बड़ा शुभ होता है, गुरु के दशा बड़ी अच्छी होती है, गुरु की दृष्टि बड़ी अच्छी होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। वो होता है, बट क्योंकि गुरु के पास एक्सपैंड करने का पावर है, तो अगर वो कोई भी छोटा सा आपको मूल भी हो गया तो उसको बढ़ा के कैंसर कर देगा। ये उसका नेचर है, अब बेचारा क्या करे वो। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कुंडली में गुरु बहुत खराब है, शनि बहुत खराब है, राहु बहुत खराब है, तो खाने पीने की आदतें अच्छी रखनी चाहिए। हमारा लीवर, फॉरेन लैंड्स, फैट ऑफ द बॉडी, किडनी, ब्लड फ्लो, अपर पोर्शन ऑफ लेग्स, हमारे फीट, तलवे पैर के, इन सब पे गुरु का आधिपत्य होता है। डिजीज, जॉन्डिस, कैंसर, ब्लड वेसल्स, स्वेलिंग्स, एलिफेंटाइसिस, बॉडी लम्प्स, वार्ट्स, ओबेसिटी, ये जो बीमारियां होती हैं ये गुरु के कारण होती है। किसी ने एलिफेंटाइसिस सुना है? हाथी पांव करके एक बीमारी होती है, किसी ने सुनी है? ओके जयश्री, सो जुपिटर इज द मेन प्लैनेट फॉर दिस। यस सर, सुनिए। उसका कारक ग्रह जो है गुरु होता है। मेरे पास उसकी एक इमेज पड़ी है, इट इज, लेट मी जस्ट चेक, आई टेक जस्ट 1 मिनट। सर इसमें पैर हाथी के पैर की तरफ सूझ जाता है, ये हमने देखा है हाँ सर कहीं किसी के उसमें। जी जी जी, मैंने भी उसको एक बार देखा है। मैं रामेश्वरम गया था जब, तो वहां जाते ही मुझे लाइन से बैठे हुए दिखे थे, तो मैंने खुद अपनी जीवन में पहली बार तभी देखा था। सो इसका जो प्लैनेट है वो दैट इज जुपिटर। कौन कौन से एरिया ऑफ वर्क होते हैं जुपिटर आधारित जो लोग रहेंगे, जुपिटर क्या क्या करवा सकता है, इसको इस तरह से देखना चाहिए। तो आपको वो पुजारी बनवा सकता है, मौलवी बनवा सकता है, फादर बनवा सकता है, भजन सिंगर बना सकता है, मुख्य पुजारी बना सकता है, स्कूल कॉलेज आदि में काम करवा सकता है, खुलवा सकता है, लॉ, कोर्ट, जज, क्रैश, चाइल्ड होम्स, नेवी, सीवेज, इंटरनेशनल ट्रैवल्स, मिल्क, घी, फैट, स्वीट्स, कैशू, आलमंड, फॉरेन कंपनीज, जेल, हॉस्पिटल, पब्लिशिंग, ये सारे एरिया ऑफ वर्क होते हैं जुपिटर के। प्रोड्यूस क्या होती है जुपिटर की, क्या क्या चीज़ों को हम देखते हैं, आधिपत्य, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, रिलीजियस मैगजीन्स, स्कूल कॉलेज, घी, तेल, मिठाई, रबर, स्प्रिंग, ज्वेलरी, मेटल शीट्स, सब पे गुरु का आधिपत्य होता है। इसके बाद जो अगला ग्रह हम यूज करते हैं, शुक्र करते हैं। वीनस इज द मेन प्लैनेट फॉर अट्रैक्शन, डिजायर, लस्ट, expenses, greed, all kind of materialistic comfort like AC, fridge, TV, curtains, glasses, mirrors, paintings, artwork, beauty products, car accessories, mattresses, perfume, fragrances, wine, whiskey, beer, drinks, food, family members, sweet talks, mantra, tantra, music, singing, instrument playing, इंस्ट्रूमेंट्स, आर्ट, सिनेमा, ड्रामा, मूवी, स्वीट्स, अल्कोहल, सिगरेट, सिगार्स, जितने भी भोग विलास की वस्तुएं हैं सब पे वीनस का आधिपत्य होता है।
वीनस को दैत्यों का गुरु माना जाता है, देवताओं को, वो गुरु को देवों का गुरु माना जाता है, इसलिए उनको देव गुरु कहा जाता है। और वो दैत्य गुरु होते हैं। बट द थिंग इज, दोनों के दोनों बोथ आर गुरुज। मृत संजीवनी विद्या देने वाला शुक्राचार्य ही थे, जिनको वो जो अक्षय खन्ना की जो पिक्चर साउथ में आने वाली है, शुक्राचार्य समथिंग लाइक दैट। सो मृत संजीवनी विद्या, जो कि मरते को जिंदा करने वाली विद्या है, दैट वाज गिवन बाय वीनस, शुक्राचार्य। क्वालिटीज क्या क्या होती हैं? आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड रहेगा। वीनस अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, उसका पीरियड चल रहा है, तो आपको वो आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड दे सकता है। आपके अंदर आर्ट का प्रति प्रेम दे सकता है। आपके अंदर अपोजिट सेक्स के लोगों के लिए अट्रैक्शन देता है। बहुत सारी डिजायर्स आपके मन में आती हैं। वीनस बेस्ड लोग बहुत अच्छे मीडिएटर्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइज कराने वाले होते हैं। ऑपोजिट सेक्स के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं। आईज, नोज, चिन, थ्रोट, वॉइस पाइप, स्पर्म्स, सेक्स ऑर्गन, इन सब पे शुक्र का कंट्रोल माना जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम जो होता है, उस पे शुक्र का कंट्रोल माना जाता है, और वूम्ब पे भी। अब क्योंकि उनका उसका कंट्रोल इन सब चीज़ों पे है, तो जो डिजीज देगा वो इनसे रिलेटेड देगा। वीनस देता है एक्सेस के कारण होने वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा खाने के कारण, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण, बहुत ज़्यादा सेक्स करने के कारण, बहुत ज़्यादा मीठा खाने के कारण जो बीमारियां होती है, वो वीनस देता है। नहीं तो गले की बीमारी देता है, आंखों की दिक्कत देता है, स्किन की बीमारी देता है, हेयर फॉल देता है, डायबिटीज देता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर देता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर मून भी देता है, मार्स भी देता है, वीनस भी देता है। कौन कौन से ऐसे एरिया होते हैं जहां ऐसे लोग आपको काम करते दिखेंगे? पेंटिंग आर्टिस्ट, एक्टर, सिंगर, म्यूजिक प्लेयर, फोटोग्राफर, डेकोरेटर, मेकअप मैन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हनी, स्वीट्स, सैक्रीन, लेंसेज, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स, अल्कोहल, टी, कॉफी, ड्रग्स, व्हीकल, पेट्रोल, ट्रैफिक, टूरिज्म, रबर, सनमाइका, टेलरिंग, मोटर गैरेजेस, ड्राइवर, और जो कुछ भी रिच क्लास अमेनिटीज है, सब जगह वीनस है। जीवन में जो कुछ भी सबसे महंगा है, जो कुछ भी ऐश्वर्य के लिए है, जो कुछ भी ऐश करने, जो हिंदी में कहते हैं ना कि बड़ा ऐश करता है वो, दैट एक्चुअली डिनोट्स वीनस। द बेस्ट एंड द कॉस्टलीस्ट ऑफ एवरीथिंग इज वीनस। यस यस। किन किन चीजों पे वीनस का अधिकार होता है? सिल्क, वुमेन आर्टिकल्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, आर्ट फिल्म्स, ड्रामा, ग्लासवेयर, ज्वेलरी, मिरर्स, फ्रेग्रेंसेस, परफ्यूम्स, फ्रूट जूस, व्हीकल्स, मोटरबोट्स, एरोप्लेन्स, साइकिल्स, म्यूजिक रिकॉर्ड्स, विनाइल, सीडीज, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी आमोद प्रमोद के साधन होते हैं, सब पे शुक्र का कंट्रोल है। बिना शुक्र के आप कुछ नहीं कर सकते। फिर जो ग्रह यूज होता है, जिसको कि आपने अपने जीवन में अनेकों बार सुना होगा, सैटर्न, शनि। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की दशा, शनि का ये, शनि का वो, ब्ला ब्ला ब्ला, आपने बहुत सुना होगा। और शनि के नाम से बहुत डराया जाता है। तो ये शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु केतु हो गए, दीज आर बेसिकली कैश काउ प्लैनेट्स। इनका नाम ले लेके लोग आपसे पैसा खींचते हैं, आपको डरा के धमका के कि तुम्हारी शनि की दशा आने वाली है, साढ़े साती आ गई है, शनि की शांति करानी पड़ेगी, ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो तैसा हो जाएगा। तो आदमी डर के मारे करता है, विदाउट इवन थिंकिंग कि जो शनि है, आपने कभी, हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि मुसलमान कभी शनि की शांति नहीं कराते, क्रिश्चियन नहीं कराते, पारसी नहीं कराते। हु आर द रिचेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड? वेस्ट। चाइनीज नहीं कराते, कोरियन नहीं कराते। कभी आपने देखा है किम जोंग उनको शनि की शांति कराते हुए, या डोनाल्ड ट्रंप को, या फॉर दैट मैटर रशिया के प्रेसिडेंट को, पुतिन को? नहीं, नहीं कराते। हम ही लोग को ये बोला जाता है, भैया तुम ग्रह की शांति कर लो, तुम ग्रह का उपाय कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, अपने काम छोड़ के आदमी को इसी में घुसा दो, बेचारा इसी में मर जाए, काम ही नहीं कर पाए। तो अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि ये सब गलत है या सब नहीं होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। हर चीज़ के पीछे कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, कुछ तो सोच ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं।
ज्योतिष से आप वो चीज जान जाते हैं कि क्या आपको ये करने की जरूरत भी है कि नहीं है। ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से उठ के उपाय करना ही शुरू कर दो और आधा दिन उपाय करते हुए निकाल दो और बाकी जिंदगी आप ये सोचते रहो कि मैंने तो ये भी किया था वो भी किया था फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो होगा ही, जो होना होना लिखा है आपके जीवन में वो होगा ही। वॉट एवर इज बाउंड टू हैपन इज गोइंग टू हैपन। तो हम शनि की बात कर रहे थे। शनि इज कंसिडर्ड टू बी द सर्वेंट इन द प्लानिटरी किंगडम। सैटर्न को एक डिलेइंग प्लैनेट बोला जाता है। शनि जहाँ भी पिक्चर में आएगा वो उस घटना से को डिले कर देगा, चाहे आपके जीवन की वो कोई भी घटना हो, चाहे वो पढ़ाई हो, शादी हो, घर खरीदना हो, कार खरीदना हो, घर बेचना हो, कार बेचना हो, केसेस कोर्ट केसेस हो, सब में शनि डिले करा देगा। Saturn gives result after very hard efforts. Saturn tests your patience. Saturn denotes lower grade jobs and work. Saturn makes one go through loss of prestige and insults. जो सैटर्न डोमिनेटेड लोग होते हैं जनरली वो दूसरों के द्वारा रूल किए जाते हैं। और सैटर्न के सबसे बड़ी जो खूबी होती है, जो खासियत होती है, सैटर्न आपको बहुत ही स्पिरिचुअल बनाता है। आपके जीवन में आपको इतनी हार्डशिप्स देखने को मिलती हैं और इतना ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं कि आपके अंदर व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, आपके नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, ऑफिस के कलीग्स, व्हाट इज़ देयर रियलिटी। अगर सैटर्न अच्छा बैठा है कुंडली में तो आपको वो इन सब से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस देता है, जिसको कि हम दुख कहते हैं। हमारे संतों ने हमेशा कहा है कि जीवन में दुख जितना ज़्यादा रहे व्यक्ति उतना ईश्वर के पास होता है। सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। तो इसीलिए ऑलवेज चैंटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड, चाहे वो आपका जो भी ईश्वर हो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, जीसस हो, अल्लाह हो, वट एवर, आपका जो भी ईश्वर है, अगर आप अपने हमेशा उनके लिए डिवोटेड रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं से आप वैसे ही बच जाते हैं। और ये चीज बहुत बार लोग शनि की दशा आने के बाद सीखते हैं, बहुत बार सीख के आते हैं पिछले जन्म से। डिपेंड करता है कि आप क्या भाग्य लेके आए हो। क्या क्या क्वालिटीज होती है? डेडिकेटेड टुवर्ड्स गोल, सो प्रोग्रेस, थिंकर्स, लैक ऑफ अटैचमेंट्स, इट डिनोट्स बोन, जॉइंट, ईयर्स। शनि का हमारी हड्डियों, जोड़ों और कानों पर अधिकार होता है। शनि स्लो प्रोग्रेस देता है बट श्योर प्रोग्रेस देता है। ऐसे लोग विचारक होते हैं, थिंकर होते हैं, उनके अंदर अटैचमेंट नहीं होता है, अपने गोल के प्रति लगे रहते हैं, धीरे 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 कर ही लेते हैं जो इनको करना है। कौन कौन से डिजीजेस कवर होते हैं? डिजीजेस दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू हील, क्योंकि शनि क्योंकि डिलेइंग प्लैनेट है तो वो आपको बीमारियां भी ऐसी देगा जो ठीक होने में टाइम लगेगा। पैरालिसिस, अस्थमा, कैंसर, डेंटल प्रॉब्लम, स्किन इशू, ड्राई स्किन, जॉइंट पेन, बोन डिजीज, कैल्शियम डेफिशिएंसी, हेयर लॉस, वाटरी नोज, डेफनेस, कोल्ड्स, ये सारी बीमारियां शनि से मान देखी जाती हैं, या सैटर्न इन सब बीमारियों को देने वाला होता है। सैटर्न एक बहुत ही कोल्ड प्लैनेट होता है, शनि एक बहुत ही ठंडा ग्रह होता है, इसीलिए आइसक्रीम आपको अजीब लगेगा बट आइसक्रीम कम्स अंडर सैटर्न। तो डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, ये सब शनि के अंदर आते हैं, क्यों? बिकॉज सैटर्न इज वेरी वेरी कोल्ड। डिवाइन मनीषा जी, ऐसे बहुत सारे लोग आके बातें करते हैं कि आपका पास्ट लाइफ में ऐसा रहा होगा, वैसा रहा होगा, बट इट इज ऑल फॉल्स, इट इज ऑल होक्स। आपकी पास्ट लाइफ, जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आप जान नहीं सकते, लेकिन आप मर जाओगे तो फिर आप इधर नहीं आ सकते। तो जो आपको बोल रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ ऐसी रही होगी, वो उसको प्रूव कैसे करेगा? सो पास्ट लाइफ बताना, हम ये जरूर कह सकते हैं, ये जरूर हमारा जो हिंदू धर्म है, क्योंकि हमारे पास कर्म का और जन्म का, रीबर्थ का सबके सिद्धांत है और हमारे शास्त्रों में लिखा है, बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या हुई है। आदि शंकराचार्य और ने इसके ऊपर बहुत सारे शास्त्रार्थ करे हैं। तो ये तो खैर ठीक है कि रीबर्थ होती है, और वेस्ट में इसके ऊपर प्रयोग भी हुए हैं। और दो किताबें मैं आपको बताता हूँ, पढ़िएगा जरूर, लाइफ आफ्टर लाइफ और मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। ये किताबें पढ़ेंगे, दे आर रिटन बाय पीपल हु आर
हार्वर्ड प्रोफेसर्स रेमंड मूडी, आई थिंक रेमंड मूडी, और जो दूसरी है उनके शिष्य ने लिखी है। सो यू शुड गो थ्रू दीज बुक्स। इनको पढ़ेंगे तो आपको जो आपका जो खुद का धर्म है, मतलब हमारा धर्म है, उस पर अधिक विश्वास हो जाएगा। बिकॉज रीबर्थ किसी भी ब्राह्मणिक रिलीजन में रीबर्थ का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। इट इज ओनली एंड ओनली इन हिंदुइज्म। तो आपने जो कर्म करे हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही आपको अगले जन्म में जाके भोगने हैं। यू कैन नॉट एस्केप इट, इट इज फिक्स्ड। कौन कौन से एरियाज होते हैं जहाँ पे कि सैटर्न को माना जाता है? मीनियल जॉब, छोटे जॉब जो होते वो होते हैं, वहाँ पे सैटर्न का रूल होता है। लेदर, रिसर्च इन हिस्ट्री, आर्टिफैक्ट्स, म्यूजियम, पोस्टमार्टम, क्रीमेशन, फैमिली प्लानिंग, अबॉर्शन, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एस्ट्रोलॉजी, मंत्र तंत्र, एस्पियोनाज, आयरन कोल, जिंक, इन सब में शनि का दखल माना जाता है। इनसे जुड़े हुए कोई भी काम शनि बेस्ड लोग करते हुए मिलते हैं। कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं जो कि सैटर्न से देखे जाते हैं? लेदर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मेड फ्रॉम एनिमल हेयर, शॉल्स, सॉक्स, थिंग्स मेड फ्रॉम एनिमल बोन्स, आइसक्रीम, फ्रिज, एयर कंडीशनिंग, हैंडीकैप, एड प्रोडक्ट एंड सीमेंट। ये सारी चीजें हम शनि से देखते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा, हमने 7 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा जो कि ज्योतिष में यूज किए जाते हैं। हमने पढ़ा कि इनके जो क्या तत्व होते हैं, नेचर होता है, किन किन चीज़ों पे इनका आधिपत्य होता है, कौन कौन सी बीमारियां ये देते हैं अपने अपने पीरियड में आने पे। कल हम पढ़ेंगे राहु और केतु के बारे में। इंटरेस्टिंग है, राहु केतु के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है? कल हम एक वीडियो भी देखेंगे, मैं यूट्यूब से ढूंढ के रखूंगा जिससे आपको समझ में आए। मुझे तो पता है कि क्या होता है राहु केतु, बट हम कल जरूर इसको पढ़ेंगे। और आप में से जो लोग एंड तक रहेंगे तो दे विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, नोट्स, एवरीथिंग वॉट एवर यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस कमिंग 3 4 5 6 डेज। वैसे तो मैंने ये कोर्स 5th तक रखा है, बट हो सकता है जल्दी भी खत्म हो जाए, हो सकता है एक आध दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए, डिपेंड करता है आप लोग कितना कोऑपरेट करते हैं। सो वी विल मीट टुमारो एट 8 p.m. एंड यस, जो भी यहाँ पे पूरे दिन रहेंगे उनके लिए एवरीथिंग विल बी देयर, PDF एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन। Again, this is a thing which is person to person, very much depending upon perception। बहुत से लोगों का PLR किया, उनको उसकी आप गारंटी कहाँ से लाएंगे कि वो जो पिछले जन्म का देख रहे हैं वो सही है कि नहीं है? वो जो बुक है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर, उसमें वो एक्चुअली साइकोलॉजी के प्रोफेसर है, उनकी जो मेड है वो अपने 3 जन्म को याद रखती है। अच्छा, अपने जन्मों को याद रखने वाला लोग आज भी हैं बहुत सारे, बट वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी के बाद उनको याद नहीं आया है, वो ऑलरेडी याद था। द डिफरेंस इज दिस। PLR में अगर आपको ये दिखाया गया या आपने अपनी पिछले जन्म को देख लिया कि आप कहीं राजकुमारी थी या आप कहीं नौकरानी थी या आप कुछ कर रही थी, तो डेफिनेटली उसका आपके पास प्रूफ नहीं है। लेकिन जिन लोगों को एक्चुअली अपने पुराने जन्म याद है, वो लाइफ आफ्टर लाइफ में ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, और उनमें से एक दो को मैंने क्लोजली जानने का मौका मिला जिनको अपने 3 जन्म याद थे। दे वर टू द पॉइंट याद थे, बिना किसी PLR के। तो दोनों में बहुत फर्क है। आई कैन नॉट से कि PLR फेक है, आई कैन नॉट से PLR सही है, बिकॉज एक तो मैंने कभी लिया नहीं, दूसरा मेरी अभी मरने की इच्छा है नहीं। जो मेरा जीवन बचा खुचा है, मैं चाहता हूँ शांति से निकल जाए और मैं अपना अगला जन्म ना ही देखूं, कभी मेरा जन्म यहीं खत्म होए तो सबसे बढ़िया बात है। फिर भी जो भी इस जन्म में खराब काम करे हैं तो उसके लिए मुझे भुगतना तो है ही, तो वो अगले जन्म में देखा जाएगा। सो इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। नमस्कार, राम राम सभी को। अच्छे से रहिए, बढ़िया रहिए। कल मिलते हैं 8 बजे। बाय बाय।